Namaskar. In today's period, we are going to discuss the next rule, that is projection rule. In triangle ABC, projection rule gives us the value of small a, small b, small c. The first structure of projection rule is small a is equal to b into cos of c plus c into cos of b. This structure we want to prove. So in proof, we are using cosine rule to replace cos of C as well as cos of B. So we start proof by using the right hand side. So right hand side, that is B into cos of C plus C into cos of B. Keeping B as it is, what is value of cos C? Value of cos C is subtracting C square from A square plus B square divided by twice of AB, as well as the value of cos B subtracting B square from A square plus C square upon twice of A. So we use this cos C in this second step and cos B as well as, so cancelling this B from NR and DR as well as this C from NR and DR. So what we have in the denominator, that is twice of A. Numerator will be same, plus this denominator also gives us twice of A, and numerator is A square plus C square minus B square. So denominators are same. So keeping singly and adding the numerators of these two ratio. So this will give us A square plus B square minus C square plus A square plus C square minus B square. So in this numerator we are having two pairs with opposite sign. For example, positive B square, negative B square can be cancelled. Positive C square, negative C square can be cancelled. So lastly we are having A square plus A square, that is equal to 2A square, and denominator is 2A. So cancelling 2 from numerator denominator as well as A from numerator denominator, we will have the last entry or value as A. This is the left hand side. So we have started proof from right hand side and we have got left hand side. That's why left hand side is equal to right hand side. So the projection rule number first is hold, that is A is equal to B into cos of C plus C into cos of P. What is the projection rule number 2 and 3? So number 2 gives us the value of B. To get the value of B, we are using the small letter, that is A and C, as well as capital letter A and C. When we start this B is equal to, we use this small a and cos of this angle, and when we add with the second term as a C and cos of the angle A. So this is the structure of second, and the third structure gives us the value of small c, and small c gives us the value in terms of small ab and capital AB. So projection rule number 3, that is C is equal to A into cos of capital B plus B into cos of capital A. So these are three projection rules, A, B and C. Now we want to discuss use of this cosine rule, sine rule, projection rule in proving or in forming the half angle formulae. So first half angle formulae structure is in triangle ABC. If we consider this A plus B plus C, these are the length of the three sides of a triangle, and three sides of a triangle, when we add them, this gives us semi-perimeter. So the perimeter is just addition of three sides. When it is divided by 2, gives us semi-perimeter. When this 2 is transferred to the left hand side, then the addition of three sides, we are considering it as a twice of S. So whenever we will have
A plus B plus C, then we are writing this quantity as a twice of S. So formula is in terms of S for sine A by 2. So what is sine A by 2 is equal to under root of S minus B, S minus C divided by BC. So when angle A is attached with the sine ratio, we are not using small a in the right hand side. So what is used in right hand side? That is S and small b and small c. So these two brackets divided by same number which we have subtracted from S in the numerator. So product of these two numbers which we have used in the two brackets. So how to prove this? To prove this, we are using one simple trigonometric relation or formula is 1 minus cos A is equal to 2 sine square A by 2. Just we have used in case of limit, continuity, derivative. 1 minus cos theta is equal to 2 sine square theta by 2. In place of theta, we are using the angle capital E. It is angle of our triangle. So 1 minus cos theta means cos A is equal to 2 sine square theta by 2 means A by 2. The angle is A, therefore it is A by 2. Now we are using the cosine rule to replace cos A by cosine rule. It gives us the value as b square plus c square minus a square upon 2bc, keeping right hand side same. So in these two terms we are not having same denominator, so take cross multiplication. So 1 with twice of bc and 1 with this bracket with minus sign. If I multiply these three numbers by minus sign, as this is 1, just multiply by minus. So this gives us minus b, minus c and minus minus plus a square upon same denominator. Now I want to take a square first from the numerator, and remaining three terms are minus b square, minus c square and plus b plus twice of bc. I want to take minus common from the remaining three terms. So minus b square, after taking minus it gives us b square. This is plus by taking minus, so extra minus is to be given to the minus 2, that is 2bc, so it will be positive. And minus c square, after taking minus it is plus c square divided by twice of bc. Now these three terms in the bracket is nothing but the expansion of this bracket. So b minus c whole square gives us b square minus 2bc plus c square. So this bracket is replaced by b minus c whole square. Now we are having the structure as first term square minus second term square. So this is just like that of the structure of a square minus b square. This gives us two brackets, that is a plus b into a minus b. So we have that a is a, but that b is this bracket b minus c. So we want to add these two bases in first bracket and we want to subtract these two bases in second bracket. So by adding a plus b minus c, in next bracket a minus this bracket, that is b minus c. When we multiply by minus to these two terms, we will have opposite sign. So in first bracket as it is a plus b minus c, and in second bracket a plus c, if I take that plus c first and b will be negative, so a plus c minus b divided by same thing, that is twice of bc is equal to 2 sine square a by 2. इसको प्रूव करने के लिए आप LHS RHS के फॉर्म में प्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस रिजल्ट को आगे जाके आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट ही अब मिलने वाला है, क्योंकि आपको चाहिए साइन ए बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपने ऐसा यूज किया जिससे साइन ए बाय 2 स्क्वायर के साथ अवेलेबल है। रूट निकालने के बाद वो साइन ए बाय 2 इस स्मॉल ए बी सी और यस के फॉर्म में वो तैयार होगा। तो यहाँ ये यस को इंट्रोड्यूस करना है। तो यस कब इंट्रोड्यूस होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी आता है एडिशन में। तो ए बी सी जब एडिशन में आता है तो ही यस लिख सकते हैं। तो इसके पास ए और बी है, प्लस में सी नहीं है, तो इसको एक सी ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी तो है, सी आपको एक पॉजिटिव निगेटिव वाला मेंटेन करना है। तो ये प्लस वाला सी, माइनस वाला सी और ये माइनस सी। तो आपने ये स्ट्रक्चर बैलेंस किया है, प्लस सी माइनस सी, so it is balanced there. In second,
we are having a plus c, we are not having plus b with these two terms. So if I add plus, then we have to subtract b also. So this next bracket will be a plus b plus c. To balance this plus b, we are writing minus b and the original minus b divided by same thing, that is twice of b. Right hand side is same, that is 2 sine square a upon 2. Now if I consider the first three terms a plus b plus c, then this a plus b plus c is nothing but twice of s माइनस, ये तीनों को रिप्लेस किया है आपने ट्वाइस ऑफ एस से, और ये माइनस सी तो ये होगा -2c इनटू पहले तीन टर्म है तो आपको ट्वाइस ऑफ एस लिखना है, तो दिस ट्वाइस ऑफ एस, और बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ बी और बी लाया था पॉजिटिव नेगेटिव वाला, लेकिन ये माइनस बी और ये माइनस बी, तो आपको ये -2 भी मिलेगा। सो डिनोमिनेटर ये 2 अगर लेफ्ट में लाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में आता है और बीसी के साथ आता है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। तो यहाँ दोनों के साथ 2 है, वो कॉमन निकालेंगे, ये दोनों के पास भी 2 है, इसका भी 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 बार 2 आपको बाहर मिलता है दोनों ब्रैकेट से। तो एक ब्रैकेट आता है s माइनस सी और दूसरा ब्रैकेट आता है s माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 into b into c is equal to sin square a upon 2. So cancelling 2 from numerator and denominator, we will have, if I consider s minus b bracket into s minus c divided by b, and taking this term to the left hand side. So if I consider this is the value of sin square a by 2, but we want to get the value of sin a by 2. We are not requiring square, so taking square root on both the sides. Now angle A, which is maximum less than 180, it is greater than 0 and less than 180, its half will be less than 90, and less than 90 angle lies in first quadrant, and in first quadrant all ratios are positive. So while taking square root, sin a by 2 cannot be attached with minus, it is always positive. So we are saying that after taking square root, this sin a by 2 is equal to square root of the right hand side. इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर निकल जाता है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको रूट देना पड़ेगा, तो रूट में आता है s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो आपका टारगेट इस तरह से कंप्लीट हुआ है ना, एलएचएस सारे चीज के फॉर्म में प्रूव किया है आपने। तो जब फिर से एक बार साइन को जब ये लगाते हैं तो राइट में ये आता ही नहीं है, तो राइट में आता है बी एंड सी और यस, तो पहले यस माइनस बी होगा, यस माइनस सी होगा, और जो ऊपर बी और सी है उनका प्रोडक्ट आपको नीचे लिखना है। अब इसका जो दूसरा है, मान लो अगर ये बाय 2 नहीं होता और ये साइन ही है, लेकिन उसका एंगल अगर b बाय 2 होता, तो आपको इसी स्ट्रक्चर से उसको गेस करना है कि क्या हो सकता है साइन b बाय 2 का। जब साइन को b बाय 2 b एंगल है तो इसका मतलब स्मॉल b राइट में यूज नहीं होगा, तो यूज होने वाला कौन है, यूज होने वाला है a और यूज होने वाला है c। तो यूज कैसा करना है, एक ब्रैकेट में s से ये सब्सट्रैक्ट करो और दूसरे ब्रैकेट में c को सब्सट्रैक्ट करो, और डिवाइडेड बाय जो दो आपने यूज किए सब्सट्रैक्शन करने के लिए नंबर, उनका ही प्रोडक्ट आपको नीचे लिखना है। तो ये साइन का दूसरा स्ट्रक्चर b बाय 2 के साथ, और इसी तरह से साइन का तीसरा स्ट्रक्चर आता है जब आप एंगल कैपिटल C अपॉन 2 यूज करते हैं। तो आपको राइट में यूज नहीं करना है स्मॉल c नहीं करना है, तो ये और भी यूज करना है। तो एक ब्रैकेट में s से ये सब्सट्रैक्ट करो, दूसरे ब्रैकेट से b सब्सट्रैक्ट करो, और नीचे आता है ये इंटू बी, वही ए और बी नीचे प्रोडक्ट में लेना पड़ता है। तो इस तरह से आपके हाफ एंगल फॉर्मूले के पहले स्ट्रक्चर को आपने प्रूव किया है, जो साइन के साथ है, साइन के साथ a बाय 2, साइन के साथ b बाय 2, साइन के साथ c बाय 2। तो ये 3 स्ट्रक्चर आप अगर कंप्लीट करते हैं और पहले प्रोजेक्शन के 3, तो इस तरह से 6 फॉर्मूलेज आपके पास तैयार हुए हैं। अब आपके पास है कि साइन के जैसे आपके पास स्ट्रक्चर मिला है, उसी तरह से कॉस का भी हाफ एंगल का प्रूव करना चाहते हैं। तो कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला a बाय 2 के साथ,
तो पहला एंगल वही लेंगे a/2, जैसे साइन के साथ a/2 लिया था उसी तरह से कॉस के साथ अगर a/2 लिया जाता है तो आपको प्रूव करना है कि उसकी जो वैल्यू मेंटेन होती है वो साइन से अलग है और उसका स्ट्रक्चर है यस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। तो फिर से ऑब्जर्वेशन कि जो एंगल आपने कॉस के साथ अटैच किया है उसका ही स्मॉल लेटर यस से सब्सट्रैक्ट करना है। एक तो प्योर यस आएगा, उसका किसी के साथ सब्सट्रैक्शन वगैरह नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में एक ब्रैकेट आता है उसमें पहला यस ही रहेगा, लेकिन यस से सब्सट्रैक्ट क्या करना है, ऐसा स्मॉल लेटर जो आपके एंगल में कैपिटल में है। तो ये एंगल में है कैपिटल में तो उसका ही स्मॉल है, यस से सब्सट्रैक्ट करो और ए को छोड़ के बाकी के दो नीचे, जैसे इसमें भी थे a/2 में BC नीचे था तो यह भी BC नीचे ही आता है। तब इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए राइट साइड में कॉस का स्क्वायर आ सके ऐसा फॉर्मूला कौन सा है? पहले में तो आपने कहा था 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आता है। अब यह 1 प्लस लेते हैं, ये कॉस का स्ट्रक्चर स्क्वायर में लाने के लिए यह क्या होगा 1, अगर यह प्लस के साथ लेते कॉस ए के साथ तो ये साइन स्क्वायर नहीं रहता है, ये बन जाता है कॉस का स्क्वायर। इतना छोटा सा चेंज करते हैं, माइनस के जगह पे प्लस यूज करते हैं तो ये साइन हट जाता है और वो कॉस आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। अब फिर से आपके पास वही स्ट्रक्चर है कि आप क्या करना, यहाँ तो इसमें चेंज इतना ही है कि यहाँ प्लस है और हर स्टेप में साइन की जगह पे कॉस यूज करना है। तो ये कॉस का स्क्वायर होगा a/2 के साथ, यहाँ भी कॉस का स्क्वायर होगा a/2 के साथ, कॉस का स्क्वायर होगा a/2 के साथ। अब ये लेफ्ट में वर्क क्या होगा, लेफ्ट का वर्क होगा कि आप ये 2bc से a के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc आता है, या प्लस होने से ये b स्क्वायर पॉजिटिव c स्क्वायर पॉजिटिव आता है और ये स्क्वायर होगा नेगेटिव और नीचे दोनों का प्रोडक्ट करके ट्वाइस ऑफ bc मेंटेन होता है। अब इसमें वर्क थोड़ा सा अलग है, इसमें वर्क है कि आप इस तीनों क्वांटिटी को एक बार चेक करना चाहते हैं। इसमें क्या है तो एक है बी स्क्वायर प्लस में 2bc और प्लस है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ bc। Now if you consider the first three terms, these three terms are nothing but the terms which are coming in the expansion of this bracket square. So b plus c whole square gives us these three terms. So these three terms can be combined, replaced by b plus c whole square. After that minus and a square divided by twice of bc. This is equal to twice of cos square a/2. Once again, we are having the structure that first term square minus second term square. It is a square minus b square. So a square minus b square gives us two brackets. In first bracket, their addition of their bases, and in second bracket, their multiplication, and दो ब्रैकेट का बीच में दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट और सेकंड ब्रैकेट में आता है उनका सब्सट्रैक्शन। तो ये दोनों उस फॉर्मूले से अगर आप रिप्लेस करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, इस तरह से उसका रिप्लेसमेंट अगर करते हैं तो ये दोनों की एडिशन एक ब्रैकेट में करना है। तो बी प्लस सी उसके साथ ए ऐड करो और बी प्लस सी में से ए को सब्सट्रैक्ट करो। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इस तरह से दो ब्रैकेट से रिप्लेस हुआ है। अब आपका टारगेट है आपको यस के तरफ जाना है और यस के तरफ जाने के लिए रास्ता एक ही है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर है तो उसको ट्वाइस ऑफ यस से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग फर्स्ट ब्रैकेट एज ए प्लस बी प्लस सी and in second bracket we are having b plus c. We are not having a at this position, so we balance a in the second bracket. So I am taking capital A, I am taking positive A and b plus c as it is. In order to balance this plus A, we are using minus A and this minus A whole divided by
same, that is twice of BC, and in right hand side we are having twice of cos square A by 2. Now this first that is these three terms are nothing but the value of twice of S. So I am replacing this bracket as a twice of S into, in second bracket we are having the sum of these three, that is twice of S, and minus a is nothing but minus 2a divided by this 2 to the left hand side in denominator. So cos square A by 2. If I take 2 common from these two terms outside the bracket, so this will be twice into S into S minus a divided by 2 into BC. This is value of our result with square. So this cancellation 2 will give us the value of cos square A by 2 as S into S minus a divided by BC. And if I take the square root on both the sides, once again square root will be positive only because A by 2 angle lies in first quadrant. So this cos with A by 2 gives us the right hand side as, with the root symbol, S minus a divided by B. So this is the half angle formula for cos with angle A by 2. आपने अगर A एंगल सप्लाई किया है तो आपने स्मॉल a सब्सट्रैक्ट किया है S से और नीचे B और C का प्रोडक्ट लिया है. अब मैं अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर डायरेक्टली लिखना चाहता हूं तो cos होगा, लेकिन कौन से एंगल के साथ? B by 2 के साथ. तो cos B by 2 के साथ क्या वैल्यू मेंटेन करता है? तो cos B by 2 के साथ A by 2 के साथ S से स्टार्ट होता था, यहां भी S से स्टार्ट होगा. और इस सेकंड ब्रैकेट में जो एंगल है उसका स्मॉल लेटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो एंगल आपका B है तो आपको स्मॉल b सब्ट्रैक्ट करना है. अब B अगर ऊपर लिया है तो बाकी के दो नीचे लेना पड़ता है. तो नीचे आता है प्रोडक्ट किसका? A और C का. तो ये cos B by 2 की वैल्यू है. और तीसरी वैल्यू क्या होगी? जब cos आप अटैच करते हैं कैपिटल C by 2 के साथ. सो व्हेन cos इज अटैच्ड विद कैपिटल C by 2, जो एंगल आपने अटैच किया है तो वो सब्सट्रैक्ट करना है, स्मॉल लेटर उसकी सब्सट्रैक्ट करनी है S से. तो ऊपर का स्ट्रक्चर S तीनों में सेम रहेगा और ब्रैकेट में S माइनस C, क्योंकि C एंगल है तो C सब्सट्रैक्ट करना है और C ऊपर लिया है तो बाकी के दो नीचे यूज करना है ये उनके प्रोडक्ट में. तो ये और B का प्रोडक्ट नीचे रहेगा. तो इस तरह से आपने पहला इस तरह से प्रूव किया है और उसको पहले को ऑब्जर्व करके बाकी के दो सिमिलर रास्ते से आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से प्रूव होगा. सिर्फ बदल चेंज करना चाहते हैं एक ही जगह पे भी यूज करो तो उतना चेंज करके ये दोनों प्रूव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी प्रूव कर सकते हैं. अब आपके पास साइन A by 2 के भी मालूम हुए, cos A by 2 के भी मालूम हुए. आपका टारगेट है tan A by 2 की. तीसरी जो आपकी रेशियो की वैल्यू होती है tan की होती है. तो tan को प्रूव करना है A by 2 के साथ क्या आता है. तो tan की जो वैल्यू है, tan अगर A by 2 के साथ है तो उसका स्ट्रक्चर tan तो मालूम है आपको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में रहता है. तो जो साइन का स्ट्रक्चर और कॉस का स्ट्रक्चर मिक्सचर में आता है, रेशियो में आता है, वही tan को आता है. तो S माइनस B S माइनस C डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस. ये है tan जब A by 2 एंगल अटैच करते हैं. जब A by 2 एंगल दैट इज A एंगल अटैच करते हैं, हाफ एंगल अगर ये है, A का अगर हाफ एंगल है दैट इज A by 2 है, तो आपको A को नीचे सब्सट्रैक्ट करना है और बाकी के दो जो ब्रैकेट से यहाँ मिलते हैं जिसमें B और C होगा, ये नहीं होता उसके ऊपर. तो इस तरह से प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए आप ये रेगुलर मेथड से नहीं जाना चाहते, सिंपल मेथड है जो आप लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं तो वी कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो tan A by 2 है. तो tan A by 2 के साथ अगर आप यूज करते हैं तो tan क्या होता है? tan तो होता है साइन अपॉन कॉस, बराबर है. tan की वैल्यू साइन बाय कॉस होती है और tan को जो एंगल है वही साइन और कॉस को आता है. तो ये दोनों को भी वही एंगल मेंटेन होता है.
अब आपका टारगेट है साइन ए बाय टू की वैल्यू लिखनी है और कॉस ए बाय टू की वैल्यू लिखनी है। तो साइन ए बाय टू की वैल्यू क्या होती है? साइन ए बाय टू की वैल्यू होती है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। और कॉस ए बाय टू की वैल्यू जो आपने अभी प्रूव की है, कॉस ए बाय टू की वैल्यू एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो ये दोनों है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है। ये कॉमन अगर रूट लेते हैं तो ये बीसी बीसी कैंसिल हो जाता है। तो ये बीसी बीसी अगर कैंसिल होता है तो आपको रिमेनिंग जो होगा वही आपका राइट हैंड साइड होगा। तो ये एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए, ये राइट हैंड साइड है। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट होल्ड्स। और आपका टारगेट अब ये है कि आपके पास जैसे tan के a बाय टू था, अब आपको tan को b बाय टू अगर लेना है, tan के साथ अगर b बाय टू लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको तैयार करना है। तो स्ट्रक्चर रूट से स्टार्ट होगा और क्या होगा जब आप b अटैच करते हैं tan को, तो नीचे का स्ट्रक्चर अगर तैयार करते हैं पहले तो और इजी हो जाता है। तो नीचे में क्या है, यस इंटू यस माइनस जो एंगल है वो यस से सब्सट्रैक्ट करना है, बराबर है। और ऊपर बी को छोड़ के बाकी के दो सब्सट्रैक्ट करना है इससे। तो बी को छोड़ के है ए और बी को छोड़ के है सी, ये दो स्ट्रक्चर ए और सी को यस से सब्सट्रैक्ट करके ब्रैकेट बनाना है। तो ये है tan b बाय टू की वैल्यू, जिसको आप सेकंड कह सकते हैं। और थर्ड क्या है, थर्ड है tan अगर c बाय टू के साथ अटैच करते हैं। और tan c बाय टू के साथ क्या होगा, अगर नीचे का स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि c अगर एंगल है tan को तो आपको s माइनस सी नीचे आता है, s इंटू एस माइनस सी नीचे आता है। c को छोड़ के बाकी के दो ऊपर आते हैं, तो बाकी के दो है s माइनस ए एंड s माइनस बी। तो tan c बाय टू इस तरह की वैल्यू लेता है। तो आपको एग्जाम्पल में ये कितने फॉर्मूलेज तैयार हुए हैं आज के पीरियड में? 3 है प्रोजेक्शन रूल, बराबर है। 3 है साइन के a बाय टू b बाय टू c बाय टू के साथ के, बराबर है। 6 हो गए। 3 है कॉस के, कॉस a बाय टू, कॉस b बाय टू, कॉस c बाय टू, 9 फॉर्मूलेज हो गए। और आपको tan के 3, tan a बाय टू, tan b बाय टू, tan c बाय टू। तो ये इन ऑल 12 फॉर्मूलेज आज की पीरियड में अब डिस्कस हुए हैं। इनका यूज आपको करना है एग्जाम्पल्स में। ओके।